بسم الله الرحمن الرحيم रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेटर्स ऑनलाइन क्लास. होप you are well. I am your science teacher and here is our first video lecture. Today we are reading about grade 3 science chapter 9 light. Students, before starting the chapter, a question arises in our mind that how do we see the objects around us? Means कि हम अपने इर्द गिर्द चीज़ें कैसे देखते हैं, क्या चीज़ हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. Yes, of course, we are able to see objects around us because of light. It helps us to see things in day and night. Students, now open your textbook, page number 88, chapter 9, light. Students, firstly we will read the learning outcomes of this chapter. These learning outcomes will tell us that what knowledge we will gain after reading this chapter. So let's start with the first one, that is identify sources of light in their surroundings. बेटा, जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लाइट सोर्सेज हैं जिनसे आप लाइट गेन करते हैं. फॉर एग्जांपल बल्ब है, सन है, कैंडल है, फायर है, ये सब लाइट सोर्सेज हैं, इनसे आपको लाइट मिल रही है. द सेकेंड वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. बेटा, यहाँ पर ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट देते हैं. फॉर एग्जांपल सन है, कैंडल है, ये सब खुद से लाइट देते हैं. And non-luminous objects are those objects that does not give out light by itself, जो खुद से लाइट नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो डोर है, पेंसिल है, आपकी बुक है, वो सब लाइट नहीं देते. सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये नॉन ल्यूमिनस हैं. द थर्ड वन इज ग्रुप सोर्सेज ऑफ लाइट इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड. बेटा, नेचुरल जो भी सोर्सेज होते हैं वो ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनमें ह्यूमन एक्शंस इन्वॉल्व ना हो. एंड द ह्यूमन मेड सोर्सेज आर दो सोर्सेज जो मैन मेड हों, जो इंसान बनाए. द फोर्थ वन इज एक्सप्लेन हाउ रेनबोज आर फॉर्म्ड इन द स्काई. आप इस चैप्टर को रीड करने के बाद एक्सप्लेन कर सकेंगे कि स्काई पे रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है. And the last outcome is list uses of light for living things. कि living things जो हैं वो लाइट को किस तरह से यूज़ करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए या फूड फॉर्मेशन के लिए, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Students, now open your textbook, page number 89. बेटा, firstly I will read it and you have to listen it carefully. Then I will explain it later. Now let's start read it. Light. We see objects in the daytime due to light from the sun. The sun is the largest natural source of light and heat. Light from the sun helps us to see objects during daytime. The stars, lightning and fire are also natural sources of light. A burning candle and a light bulb also give off light and heat. These are man-made sources of light. They help us to see objects at night. Students, according to this paragraph, हमें डे टाइम में मोस्टली जो लाइट होती है वो सन प्रोवाइड कर रहा होता है. And due to that light, we can see objects in the daytime. While among all the natural sources of light, sun is the main source of natural light. While besides the sun, stars, lightning and fire are also natural source of light. Students, natural sources means
जिनमें ह्यूमन एक्शन ना इन्वॉल्व हो, जो कुदरती हो, मीन्स जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं. While man-made sources are those sources which are made by man. For example, burning candle है और bulb है. These are all man-made sources. Man-made sources आपको हेल्प करते हैं नाइट में ऑब्जेक्ट्स को देखने में. Students, on your screens you can see some luminous objects. Luminous objects means that gives out light by itself. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट देते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, बल्ब है, कैंडल, फायर, द सन, लाइटनिंग. दीज आर ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये हम इन सब से लाइट ले रहे होते हैं. ये हमें लाइट भी प्रोवाइड करते हैं और सम इनमें से जो सोर्सेज हैं जैसे बल्ब है, कैंडल, फायर, सन, ये साथ में हमें हीट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. Students, I will again read the paragraph of your textbook, page number 89, and you have to listen it very carefully. Now let's start to read it. Things that give off their own light are known as luminous objects. बेटा यहाँ पर luminous objects को underline करें या highlight कर लें. For example, the sun, a bulb, a candle, and fire are all luminous objects. We can see the moon at night. It does not have its own light. It shines because sunlight falls on it. Some of the sunlight bounces off the moon and reaches the earth. The bouncing of light from a smooth shiny surface is called reflection. बेटा यहाँ पर reflection को भी underline कर लें और highlight कर लें. I will explain it now. Students, as we know that without light we cannot see objects. But from where this light is coming from? This light is coming from the natural and man-made source of light. It may be sun, candle, and fire. These objects emit their own light. And we know the objects that emit their own light is called as luminous objects. ऐसी चीज़ें जो खुद से लाइट देती हैं वो luminous objects हैं. Now look around yourself and check which things emit their own light. What about the objects like door, table, books and chair? Do they emit their own light? No. These objects do not emit their own light. So they are non-luminous objects. बेटा इसी तरह आप नाइट में जब मून देखते हैं स्काई पर, जो बहुत शाइन सा कर रहा होता है, उसकी लाइट हम तक पहुंच भी रही होती है. बट बेटा रिमेंबर ऑलवेज, मून की इटसेल्फ अपनी कोई लाइट नहीं. जैसे ही सन उसको अपनी लाइट देता है तो मून शाइन करता है. या इन सिंपल वे वी कैन सेड इट लाइक दैट, जैसे ही सन की लाइट मून पर फॉल करती है वो शाइन करता है. एंड दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. You can see on your book page number 89 the picture of lamp in a dark room. The light of a lamp is reflected to our eyes. जैसे ही लाइट जो है लैम्प की वो हमारे आइज़ पर रिफ्लेक्ट करती है, हम उसको देखते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं. इट इज़ द एक्शन ऑफ बेंडिंग और फोल्डिंग बैक. इन सिंपल वर्ड्स बेटा हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ का टकरा कर वापस आना रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स समथिंग. दैट मीन्स कि बेटा जब लाइट टकरा कर किसी चीज़ से आती है तो वो हमारी आइज़ पर पड़ती है और हम चीज़ों को देख सकते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक व्हेन यू हिट अ बॉल अगेंस्ट अ वॉल एंड इट बाउंसेस बैक टू यू. जब आप किसी वॉल पर बॉल को हिट करते हैं वो टकरा के वापस आपकी तरफ आती है. इसी तरह जब लाइट किसी चीज़ पर
पड़ती है तो वो टकरा कर आपकी आइस पर पड़ती है, वापस बाउंस बैक होती है आपकी आइस की तरफ, और आप उस चीज़ को देख सकते हैं। एंड दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट you can see the objects. Similarly students, you can see on your book page number 90. The light ray bounces off when they fall on a shiny surface. For example beta, when sunlight fall on a tree, it reflect to our eyes. बेटा जैसे ही फॉर एग्जाम्पल सन की जो लाइट होती है वो अगर ट्री पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो होती है हमारी आइस पर आती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइस तक आती है, एंड वी कैन सी द ट्री, और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से हम ट्री को देख सकते हैं. सो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. टुडे यू रीड अबाउट द लाइट. आपने ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज के बारे में पढ़ा. नाउ योर होमवर्क इज टू डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 89. बेटा आपने इसको अच्छे से रीड करना है. इस पेज को आपने जो कॉन्सेप्ट्स आपको वीडियो लेक्चर में बताए गए हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है. इसके अलावा आपने अपने जो नोटबुक है उस पर थर्ड टर्म का टैग बनाना है. And you will also make the title page of chapter 9 light on your notebook. In the last beta, stay home, stay safe, keep your surroundings neat and clean. Thank you for listening.